Hello student. Today I am going to explain you all chapter 3 Social Institution Continuity and Change. We can say a population is not just a collection of separate unrelated individuals. It is a society made up of distinct but interlinked classes and communities of various kind. These communities are sustained and regulated by social institution and social relationship. हम कह सकते हैं कि ये सब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. Important topics which we study in this chapter: caste and caste system, tribal communities, family and kinship. These social institutions are family, education, government, religion, economics. If we talk about definition, a social institution may be defined as an organizational system which functions to satisfy basic social needs by providing an ordered framework linking the individual to the larger culture. हम कह सकते हैं कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है जो हमारी सोशल नीड्स को एक ऑर्डर्ड फ्रेमवर्क में देता है. In this, first we will study about caste. Caste is an institution uniquely associated with the Indian subcontinent. अगर हम कहें तो कास्ट जाति यह हमारे ही कॉन्स्टिट्यूट से जुड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है. While social arrangements producing similar effects have existed in other parts of the world, the exact form has not been found elsewhere. ऐसी व्यवस्था सोशल इंस्टीट्यूशंस की कहीं भी नहीं होती जैसे कि हमारे देश में है. Although it is an institution characteristics of Hindu society, caste has spread to the major non-Hindu communities as well. Now, the term is derived from the Portuguese word casta, which means pure breed. Pure breed means जो बिल्कुल शुद्ध ब्रीड होती है. It means a group, community of people. The word is referred in Indian language by two distinct terms, वाइज वर्णा एंड जाति. ये हमारे दो शब्दों से मिलकर कास्ट बना हुआ है. अगर हम अपने इंडियन लैंग्वेजेस के थ्रू लेते हैं तो वर्णा एंड और जाति. नाउ मूव ऑन. वर्णा. वर्णा, it is literally given the name on the basis of color, in which 4 divisions of societies are there. That is the ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. अगर हम वर्ण के बारे में बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है वो बेसिकली 4 डिविजन्स में है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं. जबकि एक और इसी में एक जो डिवीज़न है वो 5th डिवीज़न माना जाता है. 5th डिवीज़न किसके लिए है उसे हम अपने वर्णा में इंक्लूड नहीं करते हैं. वो होता है जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं. बाहर से आए हुए लोगों की अगर हम बात करें तो ये होते हैं विदेशी, दास या युद्ध में जो पराजित हो जाते हैं और हमारे यहाँ आ जाते हैं. सो नाउ जाति.
Jati, a generic term referring to species or kinds of anything ranging from inanimate object to plants, animals and human beings. जाति की जब हम बात करते हैं बेटा, तो जाति उसके लिए हम यूज करते हैं जो किसी भी वंश को या किसी एक किस्म को या टाइप को बेसिकली क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है ना. इसमें कुछ भी हो सकता है. इसमें हो सकता है कि प्लांट्स भी हों, एनिमल्स भी हों और हम ह्यूमन बीइंग भी हों, है ना. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन लैंग्वेज, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द caste. Now move on to differences between caste and varna. Caste, it is a closed system, and varna, it is an open system. Caste, existence of caste, it was post Vedic period, and varna, it was in Vedic period. If we are talking about the caste, so we are having 3000 caste and subcaste. Caste and subcaste like क्षत्रिय. क्षत्रिय में जब हम बात करते हैं तो क्षत्रिय में आ जाते हैं राजपूत, आ जाते हैं गुर्जर्स, आ जाते हैं जाट, आ जाते हैं. इसी तरह से जब हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं, देन but when we are talking about the varnas, so varnas are basically 4. That is the Brahmins, Kshatriyas, Vaisyas and Sudras. No social mobility about caste. And what about for varna? Varna, their social mobility is present. Caste system, that is very rigid. But varna system, that is little bit flexible with caste. Characteristics of caste. So now we move on characteristics of caste. Characteristics of caste. The first characteristics, ascribed status. As you people have studied in 11th class, ascribed and achieved status. Ascribed status which we get from our birth, and achieved status which we are getting by our hard work or by our efforts. So what is the caste? Caste, it is the ascribed status determined by birth, in which family or in which caste we born, that we get since our beginning. अगर हम बात करें तो कास्ट जो होती है वो हमारे जन्म से ही हमें मिल जाती है. एक जो बच्चा बॉर्न होता है जिस कास्ट में, वो अपने माता पिता की ही जाति में जन्म लेता है. और कास्ट जो होता है वो कभी हमारे अपने सिलेक्शन के लिए नहीं होती है. हम अपनी कास्ट को कभी बदल भी नहीं पाते हैं, छोड़ भी नहीं पाते हैं. जबकि कभी कभी ऐसा होता है, देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स कि व्हेन अ पीपल गेट टेकन आउट फ्रॉम हिज और हर कास्ट. सेकेंड, hierarchical system means Brahmins, they are at the topmost, then Kshatriyas, Vaisyas, followed by Sudras. मतलब कि सबसे ऊपर हमारे इस कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण्स को रखा गया है, उसके बाद क्षत्रियाज को रखा गया है, फिर वैश्याज हैं और फिर शूद्राज हैं. एंडोगेमस मैरिज. Third is endogamous marriage. Endogamous marriage, marriage within caste but outside gotra. The certain examples are honor killing, which is associated with intercaste marriage. Means हम अपनी जाति में ही शादी कर सकते हैं. शादियाँ जाति में होती है लेकिन गोत्र अलग होते हैं. Fourth is concept of communalist. Each caste has its own rules and regulation in terms of food, rituals, belief, norms,
and the members have to follow them strictly. हर किसी जाति के खाना खाने, खाना बांटने, हर चीज़ का एक रूल्स होता है, और खाना किसके साथ हम बैठकर खा सकते हैं ये भी एक रूल निर्धारित होता है, वहीं से ये डिटरमाइंड होता है. फिफ्थ, concept of pollution purity. Brahmins are considered as superior and pure, and Sudras were considered as inferior and impure. Hence, if a lower caste person touched an upper caste person, they considered themselves as impure and go through rituals to clean themselves. जितनी भी कास्ट होती थी, हर जाति में एक ऊपर से नीचे तक एक स्टेप वाइज concept of pollution purity means in this Brahmins are considered as superior and pure, Sudras were considered as inferior and impure. Therefore, if a lower caste person touches an upper caste person, they consider themselves as impure and go through rituals to clean themselves. ये बताता है कि अगर किसी छोटी जाति के किसी व्यक्ति ने किसी अपर कास्ट वाले को छू लिया तो वो भी ऐसा माना जाता था कि इम्प्योर हो गया, और फिर से उसको प्योर करने के लिए कुछ रिचुअल्स होते थे, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं जिनसे कि उनको प्योर किया जाता था. नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंटल डिवीजन. सेगमेंटल डिवीजन, द होल सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड सब कास्ट. जाति में इंटर कास्ट ऑल्सो, दे वर हैविंग सब कास्ट ऑल्सो. मतलब एक एक जाति के बहुत सारे सेगमेंट्स होते थे जिसमें like if Kshatriyas are there, so they are having like Tomars, then Chauhans, Parihars, Parmars, likewise. Now next is no social mobility. There was no mobility in terms of occupation. Means जो हमारे ट्रेडिशनल वो ऑक्यूपेशंस होते थे एक कास्ट के, तो उस कास्ट में बॉर्न होने वाला एक बच्चा उसी अपने ही कास्ट से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन को ले सकता था. मीन्स जितने भी ऑक्यूपेशंस थे वो क्या थे, वो आपके बर्थ पे डिसाइडेड होते थे, और ये जितना भी ऑक्यूपेशन था वो जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफ़र होते चले जाते थे. किसी एक कास्ट का ऑक्यूपेशन कोई दूसरे कास्ट के लोग नहीं करते थे. बट children, nowadays it is not existing. Nowadays everyone is having own right to achieve anything what he or she want. Now move forward. Caste appears to be based on two principles. So what were the principle? There were two principles. One, differences and separation. Means one caste is separated from other. हर एक कास्ट एक दूसरे से सेपरेट होती थी कुछ चीज़ों पे. That was ascribed status, occupation, endogamous marriages, concept of pollution and purity, holism and hierarchy. Every caste occupies particular position. हर कास्ट का एक अपना पोजीशन था, एक अपनी जगह थी. वन सुपीरियर और इन्फीरियर टू अदर, जहाँ पर एक दूसरे से सुपीरियर होता था तो दूसरा इन्फीरियर. अगर हम यहाँ पर बात करें तो ब्राह्मण्स दे वर सुपीरियर देन द क्षत्रियास, बट द क्षत्रियास दे वर सुपीरियर with Vaisya, but inferior in terms with Brahmins. Likewise,
It depends on purity and pollution. Purity, same. Who is the superior? They are more pure than the other. Each caste also has its own occupation, but there was no social mobility. Segmental division was there. Then, if we are moving, then here we can see that fifth division is also given in this diagram, that is for untouchable. If we talk about Sudras, then there also there were the division. One was there कि then can be touches and other it was assumed as untouchable. Colonialism and caste. When the British came to India, they were shocked by two things. जब जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए, they were shocked दो चीज़ों से. फर्स्ट वन अनटचेबिलिटी एंड सेकंड द नंबर ऑफ सबकास्ट, है ना. एंड by seeing this, they decided to take some initiative. Initiative first was census. Census to make sure of number and size of the caste and subcaste. उन्होंने सेंसस करवाई, जनगणना करवाई, ये जानने के लिए कि हमारे देश में कितनी जातियां और उनकी सब जातियां हैं. Then they wanted to know the values, beliefs, customs, etc. of different sections of society. उसके साथ वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या क्या है जो अलग अलग सोसाइटीज़ में, क्या वैल्यूज़ हैं उनके, क्या उनके कस्टम्स हैं और किस तरह से वो उनके साथ कोप अप कर पाएंगे. देन द लैंड सेटलमेंट, है ना. सो in colonialism many changes occur. What was that? कि they have taken the intensive surveys. Then Herbert Risley in 1901 took up collection of information on social hierarchy on caste. That helped him to rank or position of caste that time present in that system. Government officially record caste status and it gave clear-cut division and rigidity to the caste system. जितना भी रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड ने गवर्नमेंट को एक स्टेटस दिया, एक डेटा दिया, जिससे वो जान पाए कि किस तरह का डिवीज़न है और किस तरह से कास्ट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं. वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन कास्ट, और जो सबसे निचले से निचला व्यक्ति था या कास्ट थी या जाति थी, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए या उनके भलाई के लिए वो क्या कर सकते थे या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर सकते थे. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, they used the term scheduled caste and scheduled tribes, and they felt these people should be looked after. Means they need special treatment because till that time they were assumed as very lower castes. Caste system and freedom struggle. Caste system, everyone came together irrespective of their caste. कोई किसी भी कास्ट का था वो एक साथ आए, क्योंकि तब तक सबको लगने लगा था कि कास्ट सिस्टम है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है. नेम्स यूज्ड फॉर लोअर कास्ट, उस समय तक लोअर कास्ट के लिए जो यूज किया जाता था, शूद्राज कहे जाते थे, अनटचेबल्स कहे जाते थे, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते थे, हरिजन्स थे, शेड्यूल कास्ट या उनको दलित कहा जाता था. मैनी पीपल फॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट
of the Harijans and made it part of national movement. बहुत सारे लोगों ने इस इनके लिए अपलिफ्टमेंट मीन्स जो लोअर कास्ट थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने फाइट किया और इसको ये बनाया कि किस तरह से उनको ऊपर ला सकते हैं. इनमें जो सबसे पहले थे he was the Ayan Kali. Ayan Kali, he born in Kerala and he was a leader of lower caste. अयान कली का जन्म केरल में हुआ था और वो छोटी जातियों और दलितों के लीडर थे. It was his effort. Dalit got the freedom to walk on public roads. उन्हीं की वजह से दलितों को पब्लिक प्लेसेस पे जाने आने की छूट मिली और उनको अपने बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन दिलाने का फ्रीडम मिला. देन द नेक्स्ट ज्योतिराव गोविंदराव फुले. ज्योतिराव गोविंदराव फुले, he has ISKCON, its rules, purity and pollution, है ना. He has denounced the injustice of the caste system, है ना. ज्योतिराव गोविंदराव फुले उनने कास्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके लिए निंदा की उसकी और 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज मीन्स दैट वाज द ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी उसका क्या किया उसको स्टेब्लिश किया एंड दैट वाज डिवोटेड टू सिक्योरिंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फॉर लो कास्ट पीपल. नेक्स्ट सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले, the first headmistress of the country's first school for girls in Pune. वो अपने देश की कंट्री के जो पहला स्कूल गर्ल्स के लिए बना था उसकी पहली प्रिंसिपल थी जो पुणे में स्थापित किया गया. चिल्ड्रन, यू मे गेट क्वेश्चन आउट ऑफ दीज कि हु वाज द फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस ऑफ द इंडिया in girls school. So you may give the answer Savitribai Phule. You will get the 1 mark question out of these only, है ना. So she has spent her whole life for the Sudras and farmers. She has started the night schools and she died while serving plague patient. Children, you may see जिस तरह से अभी पेंडेमिक कोविड-19 है इसी तरह से प्लेग वो भी बहुत बड़ा एक एपिडेमिक डिजीज थी जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी. सो शी हैज डाइड ड्यूरिंग द प्लेग cycle only. Now next is Periyar. E.V. Ramasamy Naikar. Periyar is known as rationalist and the leader of the lower caste movement in South India. पेरियार को हमारे साउथ इंडियंस जो छोटी जात का आंदोलन हुआ था उसके लीडर के रूप में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है. अकॉर्डिंग टू हिम द ऑल मैन्स आर इक्वल मीन्स उनके लिए उनका ये कहना था या वो जब भी कभी बात करते थे तो वो ये कहते थे कि हमारे लिए सभी मनुष्य बराबर हैं एंड दिस इज़ द राइट ऑफ एवरीवन्स कि एवरीवन कैन गेट और एवरीवन कैन एंजॉय लिबर्टी एंड इक्वलिटी. हर कोई फ्रीडम और इक्वलिटी को एंजॉय करे. नेक्स्ट इज श्री नारायणा गुरु. Narayana Guru, he was also born in Kerala, है ना. Purged brotherhood for all and fought against the ill effect of the Indian caste system. इन्होंने भी बेटा
इंडियन कास्ट सिस्टम के लिए ही पूरा अपना लगाया और वो एक पीसफुल लाइफ के लिए काम करते थे। ही हैज़ गिवन दैट सबके लिए एक ही जाति है, एक ही धर्म है और वो है ईश्वर। उन्होंने यही नारा दिया था। ही हैज़ गिवन द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन। Now the Gandhiji's views. Then now beta we will study about our father of nation Mahatma Gandhi. According to his views, Harijans should not be ill-treated, which includes removal of untouchability and other spoils, other social evils. उन्होंने कहा था कि हरिजन्स को बुरी तरह से हमें नहीं, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करना चाहिए और दूसरी जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए। ही सेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन वॉज रिक्वायर्ड, मीन्स हम सबसे बड़ी ज़रूरत अगर देश के लिए है तो वो है कि हम इन हरिजन्स का अपलिफ्टमेंट करें, इनको ऊपर ले जाएं, ये ऐसे प्रयास करें जिससे कि हम इन्हें ऊपर ले जा पाएँ। दे शुड बी इंक्लूड इन द नेशनल मूवमेंट, हमें इनका भी पार्टिसिपेशन, इनकी भी भागीदारी रखनी चाहिए अपने नेशनल मूवमेंट में, जिससे ये भी जान पाएँ कि हमारा देश किस चीज़ के लिए लड़ रहा है। बिकॉज till the time they were not get included in the national movements, so they were not knowing ki what is going on. The rights and superiority of the Brahmins would remain the same. उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी की सुपीरियरिटी को हम कम करके इनको ऊपर ले जाएं। उन्होंने कहा जो सुपीरियर है उसको सुपीरियर रहने दिया जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो नीचे हैं हम उनको ऐसा कुछ करें, ऐसे एफर्ट्स करें कि वो भी ऊपर आ जाए। कास्ट इन द प्रेजेंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कास्ट इन प्रेजेंट सिनेरियो, तो कास्ट कंसिडरेशन प्लेड अ मेजर रोल. Direction was taken by upper caste reforms as well as lower caste leaders. कास्ट अगर हम कंसीडर करें तो इसने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया। किसमें? अपर कास्ट के रिफॉर्मर्स को भी इसने एक रास्ता दिखाया और छोटे कास्ट के लीडर्स को भी एक रास्ता दिखाया कि किस तरह से बैलेंस करके चल सकते हैं, हम देश के साथ इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रॉम 1920 onwards, Gandhiji and Ambedkar they started organizing protest against untouchability. As I had explained you all कि गांधी जी ने पहले ही बता दिया था कि हम अपने ऐसे एफर्ट्स करें कि हमारे सोसाइटी से अनटचेबिलिटी, छुआछूत जैसा शब्द खत्म हो जाए। एंटी अनटचेबिलिटी प्रोग्राम became a significant part of the Congress agenda. So द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, उस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? एक प्रोग्राम लाया गया। किसमें? कांग्रेस के एजेंडा में। वो उनके लिए उस समय का एक हाईलाइटेड पार्ट था कि किस तरह से हम इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं और इसको बिल्कुल हमें ख़त्म ही करना है। नेशनलिस्ट लीडर्स वॉज टू ट्रीटेड कास्ट एज ए सोशल इविल एंड एज ए कॉलोनियल प्लॉय to divide Indians. गांधी जी वर्क हार्ड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ लोअर कास्ट, और इसके लिए गांधी जी ने बहुत 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 सारे प्रयत्न किए कि जिससे जितने भी लोअर कास्ट थे, जिनको उस समय ये कहा जाता था कि ये हरिजन्स हैं, वो किस तरह से ऊपर आ पाएँ और सोसाइटी के साथ कोप अप करके चल पाएँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ, देन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 7 इम्प्लीमेंटेड,
Article 70 is implemented for the removal of untouchability. Constitution. People should be given jobs without considering caste. It should be based on achievements. Means हमारे संविधान में ये आया कि लोगों को किसी जाति के आधार पर उनका ऑक्यूपेशन नहीं देना चाहिए. अगर कोई डिजर्विंग है तो उसको जॉब उसी बेस पे देना चाहिए कि जितना उसका अचीवमेंट है. सबको विदाउट कास्ट, बिना किसी कास्ट के डिफरेंशिएशन के सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए. एंड फॉर द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स वर गिवन so that they can be uplifted with the mainstream. इसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स को कुछ रिजर्वेशन दिए गए जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आ पाए. इन अर्बन एरियाज इंडस्ट्रीज वर एनकरेज्ड एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वर गिवन टू पीपल irrespective of their caste and based on their skill and qualification. अर्बनाइजेशन हुआ. अर्बनाइजेशन मीन्स नगरीकरण हुआ और उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की गई और उन इंडस्ट्रीज़ में लोगों को उनके स्किल और जो उनका टैलेंट था और क्वालिफिकेशन था उस पे जॉब दिया गया, ना कि कास्ट पे. Now, particular department in a factory had only one particular caste member. जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर वो होता था कि एक ही कास्ट का मेंबर होना चाहिए, वो ख़त्म किया गया. इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन एन अपर कास्ट हिंदू एंड लोअर कास्ट मेंबर रिमेन्स वेरी रेयर. उस समय ऐसा था कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं थी. नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन. Now, next is Sanskritization. It is a process by which the low caste takes over the beliefs, ritual, style of life and other cultural traits from those of the upper caste, especially the Brahmins. Sanskritization, that is the word, beta basically for that कि लोगों ने, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने अपर कास्ट जो ब्राह्मण्स थे, क्योंकि ब्राह्मण्स का उस समय वर्ण में सबसे ऊपर जगह थी, तो वो लोग ये चाहते थे कि उन्हीं के जैसा हम भी अपने चीज़ों को फॉलो करें जिससे हम एक अपर पोजीशन तक पहुंच जाएं. ना एडवांटेज ऑफ संस्कृताइजेशन. इस संस्कृताइजेशन के एडवांटेज क्या रहे, इससे क्या फ़ायदे हुए. बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स पहले जो लोग अपर और लोअर कि ये हमारे लिए है, ये आपके लिए है, वो चीज़ें ख़त्म हुई और सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड हुआ वो बेटर हुआ. सेकंड, इम्प्रूव सोशल स्टेटस ऑफ एवरीवन. एक स्टेटस भी अच्छा हुआ. नहीं तो पहले लोग कहते थे देखो वो छोटी जाति का आ रहा, हमसे छू ना जाए या हमारे साथ ना बैठे, वो चीज़ें ख़त्म हुई. रिड्यूस गैप बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट. और उसने दोनों कास्ट के, एक अपर और लोअर कास्ट के बीच का जो गैप था उस गैप को फुलफिल किया. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ संस्कृताइजेशन. इस संस्कृताइजेशन के डिसएडवांटेज क्या रहे. कल्चर गेट्स इरोडेड. मीन्स जो हर कास्ट का अपना एक ओन कल्चर था वो कल्चर धीरे धीरे खत्म होने लगा. बिकेम इन्फीरियर एज दे टेंड टू कॉपी. अब क्या हुआ कि जब वो दूसरे को मीन्स छोटी जाति के लोगों ने अपर कास्ट के लोगों को जब कॉपी करना शुरू किया तो उनको जब कहीं पे कोई कमी रह जाती थी तो उनको ऐसा लगता था कि नहीं, अब हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. अ पोजिशनल चेंज, नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज. इट वॉज द पोजिशनल चेंज. पोजीशन चेंज हुई मीन्स एक छोटे कास्ट के किसी ने एक अच्छा अपने क्वालिफिकेशन से एक अच्छा स्टेटस अचीव किया, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर था उसमें कोई चेंज नहीं आ पाया, है ना. नाउ एम.एन. श्रीनिवास. एम.एन. श्रीनिवास, दे आर बेसिकली known as
known as sociologist and social anthropologist. He was known for his work on the caste system and terms such as Sanskritization and dominant caste. His book, The Remembered Village, is one of the best known village studies in social anthropology. Like children in 11th class also you have studied about the M.N. Srinivas. इन्होंने जो अपना काम किया केवल जाति व्यवस्था पे ही किया और कैसे एक अपर कास्ट, लोअर कास्ट और किस तरह से जो डिफरेंसेस होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ में बताया. नेक्स्ट इज डोमिनेंट क्लास. दिस कास्ट refers large population who were granted land rights through land reforms after independence. ये ऐसी थी डोमिनेंट कास्ट जिन्हें आफ्टर फ्रीडम भूमि सुधार के द्वारा भूमि के अधिकार मिले. पहले इनके पास भूमि थी नहीं, जमीन नहीं थी और दावेदारों ने, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने इसको छीन लिया था. लेकिन जो ऊंची जाति के होते थे वो इनको ले लेते थे, इनसे जमींदार थे, वो लगान वसूल करते थे और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इनके खिलाफ बोल पाता. लेकिन जैसे ही फ्रीडम मिली तो इनको वो अधिकार मिल गए कि किस तरह से वो अपनी भूमि ले सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल्स, इफ वी टेक सच एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट क्लास तो दैट इज गिवन हियर बेटा. यादवास बिहार और उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में वोकलिगास, देन रेड्डी और खमन्स आंध्र प्रदेश में, मराठास महाराष्ट्र में, जाट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पाटीदार्स गुजरात. देन अपर कास्ट. In this way, if we can say, the achieved status given more importance. यहाँ पर जो स्टेटस लोगों ने अपने हार्ड वर्क एफर्ट से ली थी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और लोगों को लाइफ के लिए बेटर चांसेस मिले. और इसके लिए किसने सबसे बड़ा जो रोल था वो किसने प्ले किया? एजुकेशन ने. देन अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज थे टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल, सारे रिसोर्सेज उन्हें मिले, क्वालिफिकेशन कंसीडर्ड हुई और उससे वो एक बेटर कास्ट में कन्वर्ट हो गए. देन द लोअर कास्ट. हियर द कास्ट इज विजिबल. विजिबल मतलब जो दिखाई देता था. क्यों दिखाई देता था? क्योंकि यहाँ पर उनको रिजर्वेशन मिला हुआ था उनके अपलिफ्टमेंट के लिए. और ये जो थी लोअर कास्ट जो थी, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका था? एस्क्राइब्ड स्टेटस. एस्क्राइब्ड स्टेटस मीन्स जो उनको बर्थ से मिला हुआ था. देन they did not have life clauses before, but now they use their caste to power themselves. पहले उनके पास वो राइट्स नहीं थे लेकिन अब उनको वो सब कुछ मिल गया था. सो आई थिंक चिल्ड्रन कि यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट पार्ट, tribal community, I will explain you all in next video. Thank you.